Hello and welcome everybody. After so long, we are getting connected. I'm really very sorry. काफी ज़्यादा break हो गया था. The break was very long, but what to do? We can't help. Actually, I was also not well these days, so I could not continue it on Monday and Tuesday. So when Tuesday, yesterday, actually I tried, but due to network and there was too much power fluctuation yesterday, so we cannot get connected. So let's have a quick recap from nouns to adjectives which we have done till now. अब तक जो हमने करा है उसका एक क्विक recap करेंगे. सो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन जो है आपका ये जो टेम्पल एरिया है उसको आपको करना है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ओके देन द प्रपोज सॉरी प्रोनाउन सो प्रोनाउन में आई यू ही शी इट दे ओके इस तरीके से आप बताएंगे उसको प्रोनाउन को वर्ब इट्स एक्शन लाइक दिस वर्ब and for past present future okay these are the actions colors आपको पता ही है noun के लिए black pronoun के लिए pink and for verb it's red okay adjective के लिए हमने देखा था blue color ठीक है and for adjective what is the action yes do you remember what is the action for adjective yes so now it's a homework just try ठीक है प्रैक्टिस याद कीजिए आप अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो को देख लीजिए एडजेक्टिव का एक्शन में अभी नहीं बताया ओके वी हैव डन द एडजेक्टिव्स एज वेल चलिए सो इट्स अ ब्लू कलर तो वो हमने देख लिया था नाउ वी आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स द एडवर्ब वर्ब हमने देखा था व्हाट इज वर्ब वर्ब इज जहां पर हम किसी एक्शन का बोध होता है वेर वी अंडरस्टैंड वेर द एक्शन इज हैपनिंग है ना सो व्हेन दैट एक्शन is justified or when that action is more emphasized, that word is called as adverb. जब एक्शन को हम सबसे ज्यादा एम्फसाइज करके बताते हैं कि वो एक्शन और किस तरीके से किया गया है हाउ दैट एक्शन is being done or how the action is being performed like he runs fast okay so fast is an adjective okay but he runs very fast तो किस पर सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है फोकस हो रहा है सबसे ज्यादा जो है वो हो रहा है वर्ब पे इट इज फोकसिंग मोर ऑन द वर्ब राइट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम वर्ब पे फोकस कर रहे हैं तो उस दौरान क्या चीजें आ रही ओके ना नेक्स्ट जब हम वर्ब पे फोकस कर रहे हैं सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट दैट इज द वर्ब अब जैसे यहाँ पे जो एक्शन आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है यू हैव टू बैंग वन फिस्ट ऑन द टॉप ऑफ अदर लाइक दिस इज द एडवर्ब एक्शन ओके तो अब ये ऐसा क्यों किया गया है प्रिटेंड दैट दिस इज एन एक्शन एंड यू आर एम्फसाइजिंग ऑन द एक्शन ओके while you're doing verb action उसमें भी हमारी fist बंद होती है so we are moving it like this okay that's a verb तो अब जब verb is having some more emphasizing so pretend that this is a verb and you're emphasizing on the verb so it's an adverb right color of the adverb is orange okay now, adverbs are the words that describe the verb. It tells more about the verb. Adjective था वो किसको ज्यादा बात करता था किसके बारे में noun and pronoun. Like he runs very fast. ठीक है तो run very fast. कौन fast run कर रहा है he. That's a noun. So adjective emphasizes or tells or describes about the noun and the pronoun which is the subject. Okay but adverb emphasizes on the verb adverb जो है वो verb को emphasize करता है ठीक है उसको describe करता है like यहां पर she sings beautifully अब ये देखिए she sings beautiful तो वो adjective होता
लेकिन जब उसमें एल वाई लग गया तो वो ब्यूटिफुल वर्ड को और एम्फसाइज कर दिया, है ना। तो ब्यूटिफुल वर्ड को एम्फसाइज करके ही वहां लिखा है, दीज आर द फॉर्मेटिव एडवर्ब्स, दे आर परफॉर्म्ड एडवर्ब्स, दे आर वर्ड्स। जो एडजेक्टिव वर्ड्स है ना, उसी में एक सफिक्स ऐड करके एडवर्ब बना दिया जाता है। ओके, तो उसमें एल वाई लग जाता है, राइट। लॉट्स ऑफ एडवर्ब्स are made by this suffix adding. So एक तो ये spelling rule में भी आप बच्चों को बता सकते हो, you can say that this is the spelling when there is an adjective, and in that adjective when we add ly it becomes the adverb, but not every time. The very word, like the word which emphasizes, is the adverb proper mainly. So he talks loud, then that loud will be what? Adjective. But when we say he talks loudly, then it will be an adverb. Okay. Now, adverb is the word that can be modified. And when it's modifying, it can modify the verb, it can modify the adjective, and it can modify another adverb as well. Okay, now this is for you to understand. It's not for the students. बच्चों के लिए, for kids only you have to tell about the color and only you have to tell about the action. For the foundation kids children. Because ये adverb जो है, as per the Jolly learning, the children are taught in the class 4th. तो जब तक ये एक्शंस का बस उनको एक नॉलेज हो जाए कि दिस इज एन एडवर्ब, दैट्स इट। अब उसके जो बेस जो समझाने होते हैं तो वो हायर लेवल पर ही समझते हैं। एडवर्ब जो है बच्चों को क्लास 2 तक नहीं कराया जाता। यस, इन दी अनदर जो अदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इन सबके जो स्कूल्स है, जो IGCSE ICSE ये सारे स्कूल्स हैं, यस, वहां पर क्लास 2 में आ जाता है, राइट। बट वहां पे जॉलीफोनिक्स से ही स्टार्ट होती है। LKG से प्रॉपर जॉलीफोनिक्स की ही बुक्स रहती है। इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली जो IGCSE और ये स्विट्जरलैंड की जो यूनिवर्सिटी है, वहां से जो स्कूलिंग्स होती है, जो ICSE IGCSE ये सारे जो बोर्ड्स हैं, उनमें ये सारी चीजें जल्दी एप्लीकेबल होता है। बट ये इन CBSE एंड इन अनदर स्टेट बोर्ड्स, वहां पर एडवर्ब जो है वो 4th क्लास के बाद है, राइट, इन इंडिया। So she sings beautifully. Her voice is extremely beautiful. So here the word extremely is the adverb. She sings amazingly beautiful. Now here amazingly beautifully. Both the words. देखिए first sentence it's modifying the verb. She sings beautifully. It is modifying what verb? Sing is the verb and it's being modified with the word beautifully. देन हर वॉइस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, यहां पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। वॉइस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, राइट। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इज एन एडजेक्टिव, यहां पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना। एक्सट्रीमली इज एन एडजेक्टिव और ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, उसको बीच में डाल के एक्सट्रीमली बता दी। शी सिंग्स अमेजिंगली ब्यूटिफुली। Amazingly beautifully sounds like in a different way, but yes, it is spoken. इस तरीके से बोला जाता है। So she sings amazingly beautifully. So here एक एडवर्ब जो है अमेजिंगली, उसको ही मॉडिफाई कर दिया, एडवर्ब को ही खुद मॉडिफाई कर दिया ब्यूटिफुली। Another adverb. So it can be said in many different ways. So this is all about adverb. Okay. And now we will understand a concept. एक concept को और समझेंगे. From here, we make the child understand about the main concept, that is subject, verb, and object. Okay. Subject, verb, and object is very, very important for a child to understand. अब यहाँ पर जब हम subject, वर्ब, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, व्हाट कम्स अंडर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? व्हाट कम्स अंडर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हैज nouns and pronouns. Subject has
nouns and pronouns. Okay. And object has prepositions, conjunctions, adverbs एंड एडजेक्टिव्स. अब यहाँ पे prepositions और conjunctions जो है ये अपना अभी बाकी है जॉली ग्रामर के लेवल पर. दैट विल बी सेइंग टुमारो. दोनों एक साथ देखेंगे. और जो बीच में है दैट इज द वर्ब. ओके. और एकदम सेंटर में है वो दैट इज द वर्ब. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज द थिंग विच इन्वॉल्व्स द टेंसेस. वर्ब वो चीज है जहां पर हम टेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं. राइट. So when we talk more about the tenses, it is something where the sentences are involved with the action. Sentences वो है जो action के साथ involved. So subject involving noun and pronoun, verb involving action, and then object which involves adverb, adjective, preposition, and conjunction. Okay. Many a times conjunction comes with nouns and pronouns as well, like Ram and Shyam. So and will become a conjunction. Again, it's joining two nouns together. Okay. So with that, we understand that this is the part of the sentence. अभी तक हम समझ रहे parts of speech. But slowly and gradually, along with parts of speech, we have to make the kids understand parts of sentence also from now onwards. जब हम बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तक सिखा दिए, इसके बाद हम देखो 50% हमने ऑब्जेक्ट बता दिया, 50% हमने सब्जेक्ट बता दिया और वर्ब बता दिया. तो बेसिक सिंपल सेंटेंसेस एसवीओ के हम बच्चों को सिखा सकते हैं. वी कैन टीच लाइक जैसे अभी हमने किया शी सिंग्स ब्यूटिफुल. अब इसी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, ओके, लाइक इफ वी सी द सेम सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटिफुल, इसी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन. Every time during your class only these kids are coming. Okay, so the screen is in front of you. Now here, see, she sings beautifully. So what is she? Is a subject. Sings is a verb and beautifully is the object. देखिए हमने एडवर्ब तक सिखा दिया, तो यहां हम बच्चों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना सिखा सकते हैं विद द एसवीओ फॉर्मूला. दिस इज द बेसिक एंड द मेन फॉर्मूला टू क्रिएट द सेंटेंसेस. ठीक है. अब छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को ये फॉर्मूला की लिस्ट तो नहीं दे सकते. हाँ, जब हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वहां पे हम सभी एडल्ट्स को ये फॉर्मूलाज की लिस्ट देते हैं. वी गिव देम द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दैट लाइक फॉर टू क्रिएट अ जनरल सेंटेंस वी हैव दिस फॉर्मूला. And then for tenses this is the formula list, present perfect वगैरह इनकी ये formulas. But for to small kids we if we give them the formulas they will just brush off, right? So उनको हमें ऐसे बताना है कि ये क्या चीज क्या होती है. Right? See, you all have also completed your education from English medium schools. So and convent schools or as such. But आपको कभी क्या कोई टीचर ने फॉर्मूला वाली लिस्ट देकर चीजें पढ़ाई क्या? नो ना. शुरू से ही अभी भी अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, सो वी हैव द प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके सेंटेंसेस और उसकी एक्सरसाइजेस होती है. पिक आउट द नाउन, सर्कल द नाउन एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस. इस तरीके की चीजें होती है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज पार्सिंग. आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज पार्सिंग. वो हम आगे पढ़ेंगे.
सो जब हम ये चीजें स्कूल में कर रहे होते हैं तब हम एक एक करके चीजें पढ़ रहे होते हैं, हमें कोई फॉर्मूला की लिस्ट वगैरह में नहीं मिलती, बट व्हेन वी रीच टू द हायर लेवल वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग, लाइक सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ इन अवर टाइम्स इन 90s। आजकल तो बच्चों को फिफ्थ सिक्स्थ में ही फॉर्मूलाज की लिस्ट पकड़ा दी जाती है, दिस इज द फॉर्मूला एंड यू हैव टू प्रिपेयर द टेंसेस लाइक दिस एंड इन दिस फॉर्मेट, बट अर्लियर इट wasn't। सो यहां पर शी इज व्हाट, इट्स अ प्रोनाउन, ठीक है। दिस सिंग्स इज अ वर्ब एंड ब्यूटिफुली इज एन एडजेक्टिव। तो ये हमको पता चल रहा है कि जब ये प्रोनाउन है दिस इज द पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, if this is a verb and if this is an adjective then this comes in the object। ऐसा बेसिक बच्चों को बताना है, like her voice, her is a subject, now here voice, वॉइस इज अ स्टेट वर्ब। अगर आपको याद होगा तो वर्ब में हमने आपको ट्रांजिशन वर्ब एंड इन ट्रांजिशन वर्ब, नॉन ट्रांजिशन वर्ब सिखाया था, तो दिस वॉइस इज अ स्टेट वर्ब, ठीक है, दिस इज अ नॉन ट्रांजिशन वर्ब। और यहां पर ये दिस एक्ट्स एज अ वर्ब ओनली, okay, and is a helping verb, so yes it's a verb, ठीक। so it's an auxiliary verb जो verb वाले kinds में हमने देखा था, so it's an auxiliary verb। then extremely this is an adjective and this is again an adjective, so then again it comes under the SVO format, ठीक है। मैं थोड़ा सा खिचड़ी सा हो गया, I'll just erase this so that you understand it properly। Okay, now she sings amazingly beautiful. So yeah, देखो, this is the same kind of sentence. So I think you will remember this is the subject, then this is the verb, and from here it's an object. So simple sentences we can do it. So birds fly in the sky. If I'm writing this sentence, so how we'll teach the kids? This birds is the subject because it's a noun. Fly is the verb, okay, and in the sky, यहाँ से in the sky it will be the object। अब यहाँ पे the sky is the noun, लेकिन in क्या है? In is a preposition। So जब आप preposition सिखाएंगे तब इस तरीके की sentences जो है आप बच्चों को करा सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आपने कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया उससे रिलेटेड सेंटेंसेस जो है बच्चों को कराना स्टार्ट करें। एज यू कंप्लीट दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट टीचिंग दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसे ही हमने जॉलीफोनिक्स सिखाया बच्चों को, आफ्टर टीचिंग जॉलीफोनिक्स हम क्या करते हैं, हम बच्चों को स्पेलिंग रूल्स बताना स्टार्ट कर देते हैं ना, स्लोली स्लोली। फोनिक्स का साउंड का नॉलेज हो गया एंड देन स्लोली स्लोली वी टीच देम द दिस थिंग स्पेलिंग रूल्स एज वेल। जैसे प्लूरल्स बनाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए, नाउन्स दिखाना स्टार्ट कर दिया, फिर हम सिंगुलर प्लूरल सिखा देते हैं बच्चों को। वन पेंसिल, टू पेंसिल्स, वी आर एडिंग एस इन दैट, लाइक ऑफ साउंड सिखा दिया, च श क्ष ज, तो इन साउंड में ईएस लगता है, तो ये हमने बच्चों को सिखा दिया फर्स्ट सेकंड में। तो हम जब एक साइमल्टेनियस चीजें कराते जा रहे हैं, व्हेन वी आर doing the things simultaneously. So with Jolly Grammar, what do we do? When we are teaching each and every part, when we reach the level of all the completion of the sentences, we start giving them basic sentences so that they understand. Now, when they are making these sentences, what they are going to do is, इसमें एक activity होती है, like जैसे कि अब now she is a pronoun, ठीक है, ये एक उसने पिक आउट कर लिया। सिंग्स इज अ वर्ब एंड ब्यूटिफुली इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। व्हाट आई विल डू इज, इसके लिए कौन सा कलर होता है? ब्लैक, नाउन, ये प्रोनाउन के लिए पिंक कलर, राइट। सो आई विल अंडरलाइन दिस विथ पिंक कलर प्रोनाउन, ठीक है। एंड वर्ब इज इन रेड कलर, सो आई विल अंडरलाइन दिस विथ रेड कलर, ठीक है। एंड दिस इज इन ब्लू कलर adjective, so I will underline this with blue color, okay। तो इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है, तब बच्चों को क्लैरिटी आ जाती है कि which is noun, which is pronoun, which is verb and which is adjective। So I am underlining it this, you can just tell them to color because this is a digital screen, so I cannot color this, but if they will have an activity sheet they can color that with a pencil color,
तो शी जो लिखा हुआ है वो उभर के दिखेगा और उसके पीछे हाईलाइट हो जाएगा पिंक कलर से। ठीक है, लाइट कलर्स, यू कैन यूज दोस लाइट कलर्स एंड देन यू कैन हैव इट। ओके, सो दिस वे यू कैन जस्ट डू इट। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके ना, सो आप इसको मैं आपको ऐसे सर्कल करके बताती हूँ। सो लाइक इफ यू आर सर्कलिंग दिस विथ पिंक कलर, so what you can do is just make a circle like this. You can tell the child कि आप इसको सर्कल करिए। So this, and now next with red, she sings, and with blue, beautifully। तो ऐसी कुछ बेसिक एक्टिविटीज जब हम बच्चों को कराते हैं तो बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं और उनको कलर याद हो जाते हैं कि अब कहाँ पिंक करना है, कहाँ रेड करना है, कहाँ ब्लू करना है। दे इफ दे रिमेंबर दोज कलर्स देन दे विल रिमेंबर दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच। This is the main idea to make them understand. Okay. So here we have completed the adverbs and the SVO screening. We are giving the SVO screening to the kids at this age and age level. Tomorrow we'll be understanding about the preposition and the punctuation। preposition और punctuation आज हमने क्या सीख लिया, adverb और adverb के साथ में sentence का main structure, subject, verb and object। tomorrow we'll do one parts of speech, preposition, and along with that we will be doing punctuations and connectors। Okay, so we'll end our session here for the day।